In this video, we are going to study about the Medical Termination of Pregnancy Act, which was given in 1979. Abortion in India has been legalized under various circumstances for last 50 years with the introduction of Medical Termination of Pregnancy Act in 1971. बहुत टाइम पहले अगर हम देखें तो अबॉर्शन दैट इज़ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर बर्थ ऑफ अ फीटस उसको इलीगल माना जाता था, पर फिर कुछ टाइम बाद 1971 में उसको लीगलाइज्ड किया गया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. ठीक है. द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2003 टू इनेबल वुमेन एक्सेसिबिलिटी टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन सर्विसेज. दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2003 लेटर ऑन to enable the women's accessibility to safe and legal abortion services. What does this act specifies? It specifies the indication for legal termination, who can terminate pregnancy, where the pregnancy can be terminated, and also the consent requirement. मतलब जो person है the woman जिसका termination होना है उसका consent की requirement is the most important part or the criteria for the medical termination of pregnancy act. When can pregnancy be terminated? अगर हम terminated करना है pregnancy तो the length of pregnancy should be less than 12 weeks. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन, अगर 12 वीक्स से ज़्यादा है तो 20 वीक्स से कम है. अगर 12 वीक्स और 20 वीक्स के बीच में है तो हमें 2 RMPs का उसमें ओपिनियन लेना है. Next is, who can terminate the pregnancy? The RMP should possess one or more of the following. अभी जो हम पढ़ने वाले हैं about the degrees or the experiences, उसमें से at least one या फिर उससे ज़्यादा experience होना चाहिए to the RMP. Registered, he should be registered in state medical register immediately before the enactment of act. उसका registration होना चाहिए in state medical register. Experience in the practice of gynecology and obstetrics for not less than 3 years. At least 3 years के लिए उसका experience होना चाहिए in gynecology and obstetrics या फिर obstetrics. ठीक है. An RMB who is registered in a state of medical register on or after the date of commencement of the act. State medical register में भी he should be registered. If he has completed 6 months of house surgery in gynecology or obstetrics, इसमें या फिर तो उसके 6 months की ट्रेनिंग होना चाहिए, या फिर without doing any house surgery he should have experience at some hospital for not less than 1 year in practice of the same gynecology. या तो उसका 6 months का हाउस सर्जरी में एक्सपीरियंस हो, और अगर हाउस सर्जरी में नहीं है तो उसे किसी हॉस्पिटल में एटलीस्ट 1 year के लिए वर्क किया हो. ही शुड हैव असिस्टेड एन RMP इन परफॉर्मिंग, या फिर उसने 25 केसेज ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी असिस्ट करे हो विद एन RMP इन अ हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड और रन बाय द गवर्नमेंट. द प्लेस जहाँ पे हमारी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होना है, इट शुड इंक्लूड ऑल द रिक्वायरमेंट, जो भी सर्जिकल रिक्वायरमेंट है, एनेस्थीसिया है, या फिर जो भी ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन थिएटर, सारी चीज़ें होना चाहिए. प्लस इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. अब लेट्स सी किस किस कंडीशन में द टर्मिनेशन या फिर तक ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन. ठीक है. सबसे पहले द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड हैव अ सीरियस रिस्क. अगर प्रेग्नेंट वुमेन या फिर उसके किड, उसके या तो प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ही रिस्क है उसकी लाइफ को, या फिर उस जो किड है या फिर जो न्यू बॉर्न है उसको कोई रिस्क है उसकी लाइफ को, तब प्रेगनेंसी हो अब टर्मिनेट हो सकती है. द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ओपिनियन ऑफ 2 RMP शैल नॉट बी अप्लाई इन केस ऑफ टर्मिनेशन. अगर कोई इमरजेंसी केस है तब नहीं होगा कि अगर मतलब 12 वीक्स से 20 वीक्स के बीच की कंडीशन है और रिस्क है द वुमेन को, तो हमें वेट नहीं करना है अबाउट 2 RMPs. तब उस केस में द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड immediately. When a pregnancy is caused by rape, अगर रेप कंडीशन है तो भी pregnancy can be terminated. When pregnancy occur due to the failure of contraceptive in pregnant women or married women, no pregnancy can be terminated without the consent of pregnant women. अगर pregnant women के ही consent लेके ही हमें the further procedure continue करना है, only when the pregnant woman is less than 18 years of age, तब उसके पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए, और या फिर जो women है वो मेंटली इल है. Places में it include a hospital that is established and run by the government, a place that is approved for its purpose of its by the government. ठीक है. जो हमारा अगर कोई हॉस्पिटल है तो वो तो गवर्नमेंट के थ्रू रन होना चाहिए. अगर कोई या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे भी पहले गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना है, उसके बाद इट कैन बी डन. Every head of hospital shall maintain a register to record therein the admissions of women for the termination of pregnancy. The register should be secret document and it should not be open to anybody for inspection under अथॉरिटी ऑफ. इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल या फिर कोई अदर इंक्वायरी है तो दिखा सकते हैं, वरना ये सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा सीक्रेट रहेगी. पर अगर कोई डिपार्टमेंटल या बाहर की इंक्वायरी है तो वो रजिस्टर ओपन हो सकता है. इन केस ऑफ सूट और अदर एक्शन फॉर डैमेज, या फिर इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ऑफेंस. अगर कोई इल्ज़ाम हो रहा है या फिर कुछ मतलब कोई रूल ब्रेक हो गया, ऑफेंस पेनल्टी जो हम पढ़ने वाले हैं, उस केस में ये जो हमारा रजिस्टर है ये ओपन हो सकता है.
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय पर्सन हु इज़ नॉट एन RMP, कोई ऐसा पर्सन टर्मिनेशन कर रहा है जो RMP नहीं है तो इट इंक्लूड 2 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन. टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट प्लेस अदर देन मैंशन, उस अगर कोई ऐसी प्लेस है जो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है तो इट इंक्लूड 2 to 7 years ऑफ जेल और इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन. एनी पर्सन बीइंग ओनर ऑफ अ प्लेस विच इज़ नॉट अप्रूव्ड, या फिर ऐसी प्लेस है जो अप्रूव नहीं है, वहाँ का जो ओनर है, द फाइन विल बी ऑफ 2 to 7 years, 2 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद द फाइन.